Hello, good evening, Yes. everyone. My name is Vishwajit, and I'm a student coordinator in Aston Institute of International Studies. Now I'm going to tell you about Institute of International Studies. So it's a 20-year-old organization, and we provide healthcare programs like certification courses and diploma programs. More than 10,000 nurses are also pursuing our courses, and more than 50,000 nurses have already certified with our courses, and they all are working with reputed hospitals. And also our certificates are ISO certified, and we are the skill partner of Skill India. Okay. And so now I'm going to introduce about the host of the webinar, Dr. Sujata Vijay Sinde. She the head of nursing group in Apex Hospital, and she has more than 20-year experience in healthcare. And she has also जिनका बहुत सारा योगदान रहा है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें. एंड अभी मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ डॉक्टर सुजाता सिंधे को. सो मैम, please welcome to Dr. Sujata Sidde. Ma'am, you can continue. Good evening, all of you. I am very thankful to Astron Institute to give me an opportunity to spread out my knowledge, share my knowledge to the nursing students. Uh, I would like to know whether you all are comfortable with English fully, or you want me to use Hindi also along with. Are you okay with only English? Is there any language restriction? No, ma'am. Okay, fine. So hope you all are been aware. Today's our topic is medication safety for nurses, or medication clarity for the nurses, which is a very basic and very important thing for a nursing role. Here we are going to go through for all the different, in a way I would be trying to tell you about the transparency towards the antibiotics and medication which every nurse are handling. I'll just share Excuse my me, ma'am. screen. Sorry to interrupt you. Kindly switch on your camera, and all the participants have I have requested. Please mute your microphone. I'm not able to share my screen. Just one. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Just one. Okay. So it is antibiotics and medication clarity. Now, for example, we will all say that the antibiotics and medicines, we all nurses from our very practical, our internship, our study level, we had started giving medicines. It is not a very big thing because every nurse basically are been handling medication from the very basic day of their nursing. So why it is so important to understand about it? It is very important because day by day we are going through different mechanism, different antibiotic rules which has been modified, the stewardship that has been introduced. So hence we have to understand what are the things, the medications which we are handling, how are they working, and what is their effect, and why every nurse should be the alert about handling the sick. Okay, so let's talk about some basics that the discovery which has been done for the medicines. These medicines were been discovered. Many medicines has been discovered, and we all know that Fleming has started the medication. Mr. Alexander Fleming has started the medications by introducing the penicillin, which was grown by a chance, and while inhibiting a mold inhibited a
bacterial growth that has happened in the petri dish. We had learned about Alexander Fleming in our microbiology chapter, so I would not go deep in all the same. Well, it is just a base to understand where the medication has been started, and as they had started, we have to take out the legacy to the best of it by handling all these medications and antibiotic away with a very responsible way. So this antibiotics attack, whichever antibiotics we are using, these antibiotics are being these antibiotics are used to kill the bacteria. How do they do? They go by cell wall synthesis, where the beta ligands attacks is, the protein synthesis occur, and then the DNA replication occurs, causing the expected organism getting targeted by the antibiotics. So that now the major challenge which we all are facing is that it is about the inappropriate use of the antibiotics. एवरीवन नॉर्मल, अभी हम ऑलरेडी अभी देखते हैं किसी को अगर सिर दर्द भी होता है तो आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स, बट अगर मेरी किसी बात सुनो। फिर मोर मैं देन जरूर गल करना है कल एनीबडी सारा चना मसाला खा गई। मेरी बात सुनो, कल काइंडली तो हो म्यूट गई ना, योरसेल्फ, व्हाइट सॉस पास्ता बना के लाएंगी ना। मैम सॉरी काइंडली टू म्यूट इंटरप्ट यू। योरसेल्फ। ये जो भी है कैंडिडेट, प्लीज अपना माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर ले, मैम को डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर हमको मालूम पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी मालूम है कि मेरे को अगर बुखार आता है तो पहले वो क्रोसिन यूज करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को डोलो मालूम पड़ा, तो अभी अभी क्या करते हैं, फिर कोई क्रोसिन यूज नहीं करता, डायरेक्ट आई एम गिविंग द वेरी बेसिक एग्जांपल सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजियर। आप अगर मालूम पड़ता है कि बाबा नहीं, क्रोसिन से ज्यादा हाई पावर वाला डोलो है, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं क्रोसिन लूं, अगर मेरे को ठीक नहीं लगेगा फिर मैं डोलो जाऊं, उससे अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, मैं डोलो ले लेता हूँ। तो दिस इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग विद एंटीबायोटिक्स। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक लेवल आने के बाद डोलो भी आपके बॉडी पे काम करना बंद कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन अ वे। मैं डोलो ना, मैं कोई एंटीबायोटिक का नाम नहीं ले रही हूँ, so that understanding is easier with crocin and dolo. Am I clear with you all? Am I clear? Let's इज द एग्जाम्पल क्लियर कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको आप क्रोसिन लेने के बदले डायरेक्ट डोलो लेना शुरू करोगे तो एक लेवल के बाद आपके बॉडी पे क्रोसिन काम करना बंद कर देगी, और उस और फिर आपको हर हेडेक के लिए या हर पेन के लिए आपको डोलो पे ही डिपेंडेंट रहोगे, और वो डोलो को ले लेकर आपकी बॉडी इतनी यूज टू हो जाएगी कि आफ्टर वन लिमिट the dolo will also not act. So similar is happening with the antibiotics. That is why we have many researchers have introduced antibiotic resistant systems to be handled out. तो अब हम एंटीबायोटिक्स मेजरली कहाँ कहाँ पे लेते हैं? नॉर्मली यूटीआईज रहते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहते हैं, या कोई भी माइनर इन्फेक्शन रहते हैं, तो हम लोग measure the basic level which are supposed to be used are the ceftriaxone, azithromycin and fluoroquinins. तो क्वेश्चन क्या आता है कि why then if we are aware कि these all medications are helping out with the illness, still हेलो the antibiotic, hello, yes, मैम, ये रिपीट कर देना दोबारा एक बार, ये आपने क्या बोला एंटीबायोटिक का? जो हेलो अभी का जस्ट ये जो एंटीबायोटिक्स है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सो दैट वॉट एवर बैक्टीरिया हैज अटैक टू द बॉडी that has to be killed up, right? So मेजरली हम लोग एंटीबायोटिक्स कब यूज करते हैं, जब सिंपल यूटीआई रहता है या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है या कोई नॉर्मल इन्फेक्शंस, बॉडी रिलेटेड इन्फेक्शंस रहते हैं, तो दैट इन एंटीबायोटिक्स लाइक सेफ्ट्रियाक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनिन दिया जाता है। तो मगर फिर क्वेश्चन क्या आता है कि हम ये सारे एंटीबायोटिक्स हमको मालूम है, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अभी मैंने क्रोसिन का और डोलो का एग्जांपल दिया, सिमिलरली अगर एक लेवल के बाद ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी पे काम करना बंद कर देते हैं। दैट इज वाई अगर जरूरत होगी तो ही एंटीबायोटिक्स को शुरू करने की जरूरत है, अदरवाइज नॉट।
तो रेजिस्टेंस क्यों तैयार होता है? तो रेजिस्टेंस इस तरह डेवलप होता है, जो मैंने बोला है कि एक ट्रीटमेंट के लिए अगर स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक आध पेशेंट को नॉर्मल यूटीआई है जो नॉर्मल बिना एंटीबायोटिक के भी हील हो सकता है, उसका अगर डॉक्टर ने बिना सोचे समझे इमीडिएटली अगर उसको सेफ्ट्रियाक्सोन स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम तो वो सॉल्व हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है तो सेफ्ट्रियाक्सोन उसको हेल्प नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो सिट्रिजिन है, जब कोविड आया था काफी लोगों को मालूम पड़ा था कि सर्दी खांसी हो गई तो सिट्रिजिन इज द बेस्ट थिंग मोर देन क्रोसिन। तो उन्होंने डायरेक्ट, अभी कोई भी क्रोसिन नहीं लेता, सर्दी हो जाती है डायरेक्ट मेडिकल में जाके सिट्रिजिन ले लेते हैं। तो व्हाट विल हैपन, फिर उनका जो बेसिक लेवल का जो इन्फेक्शंस है वो भी हायर एंटीबायोटिक हम यूज कर, तो एक लेवल के बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, जहां पे हमारे बॉडी के सेल्स को मालूम पड़ जाता है कि ये मेडिसिन है, ये हमेशा आता है और इसको हम इजीली फाइट कर सकते हैं, तो वो अनट्रीटेबल हो जाता है। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो उससे क्या होगा, मेजरली हम एक बार हमको मालूम पड़ गया तो हम उसको ओवर यूज करना शुरू करेंगे, और हर छोटी बात पे हम उसी को लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो सिट्रिजिन होता है वो रेस्पिरेटरी डायरेक्ट प्रॉपर इन्फेक्शन होने के बाद ही लेना चाहिए, तो आप हर छोटे सर्दी खांसी पे लोगे या नॉर्मल फ्लू पे भी लोगे तो वो फिर ट्रीट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से वो मिस डायग्नोसिस होगा। और सेकेंडली क्या होता है, जो नॉर्मल कोल्ड एंड फीवर के लिए आपने अगर सिट्रिजिन लिया तो उसको एक दिन में वो इमिडिएट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको हाई डोज लिया, तो वो उसका जो कोर्स रहता है वो आप कंप्लीट नहीं करते हो। देन यू, द कॉमन पब्लिक व्हाट दे डू कि विथ वन डोज आई फेल्ट बेटर सो आई विल नॉट कंप्लीट इट, बट ये सारे एंटीबायोटिक्स रहता है, इसका एक कोर्स रहता है कि इट हैज टू बी टेकन 2 times फॉर 3 days, फॉर 2 times, और टीआईडी फॉर 5 days। अगर वो कोर्स नहीं कंप्लीट करते हैं देन वो बॉडी विल देन स्टार्ट रेसिस्टिंग दैट एंटीबायोटिक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए अभी न्यू रिसर्चर्स हैज बीन स्टार्टिंग विद एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, जो हर हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया है। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम एवरी हॉस्पिटल इज हैविंग, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर पेशेंट फ्रॉम डेवलपिंग antibiotic resistance, and we can preserve many of our higher antibiotic for the patients. सो इसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, मेजरली जो हमारे नर्सिंग में रहता है कि हम राइट्स ऑफ मेडिकेशंस फॉलो करते हैं, यस और नो? तो राइट्स ऑफ मेडिकेशन हमको फॉलो करना है, तो सारे राइट्स ऑफ मेडिकेशन के ही राइट्स एंटीमाइक्रोबियल प्रोग्राम में यूज, एएमएस प्रोग्राम में यूज होते हैं, दैट इज choosing the right antibiotic as per the organism and sensitivity। अब ये organism and sensitivity हमको कहाँ से मालूम पड़ेगा? by cultures। तो अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड होता है तो उसको एंड हमको एंटीबायोटिक अगर स्टार्ट करना है, someone has raised hand, anything? Okay, सो राइट ड्रग, तो जो कल्चर्स के रिपोर्ट आते हैं उसकी सेंसिटिविटी देख के उस हिसाब से वो राइट ड्रग चूज किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वेट एंड द रीनल एडजस्टमेंट, द रीनल प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, उस हिसाब से पेशेंट के लिए राइट डोज डिसाइड होता है। देन अकॉर्डिंगली सिमिलरली द राइट रूट इज डिसाइडेड एंड हाउ मेनी डेज और टिल व्हाट टाइम द कोर्स शुड बी टेकन, ये राइट ड्यूरेशन। सो these are the more important 4 rights that has to be followed for an AMS program. And yes, stewardship has been made mandated in all the hospital from year 2020. That is just near our COVID period, where we all realized that antibiotics resistance has developed towards a very larger scale and the antibiotics are not working on the patients. Now अब ये सारा अगर एंटीबायोटिक डिसाइड करने का काम अगर डॉक्टर का है, तो फिर why nurses are supposed to be there? The question might be arising कि why nurses? It is nurses because we are the end users who are giving the medications to the patient, and whatever processes are being done in a nursing care, it has to be known by the nurse. So this is our safety net where every nurse should know कि एंटीबायोटिक क्या होता है और उसको हम क्यों देते हैं,
और वॉट एवर एंटीबायोटिक्स वी आर गिविंग, वी हैव टू बी अलर्ट कि जो एंटीबायोटिक पेशेंट के सेफ्टी के लिए अगर वो मिसयूज हो जाए तो वो उसके लिए हार्म भी कर सकती है. दैट इज वाई वेन एवर वी आर गिविंग एनी मेडिकेशन, we have to first verify with the doctor or the whoever consultant is about the indication of the medication, the dose which has to be given, the route of the medication, and the timing. This has to be cross-checked twice as it is an high alert medication. Then after that, again with the same, you have to keep a check on the infection control signs of the same. If it is a surgical patient, you have to check on the wound dressings, how it is, how the wound is the wound linings are responding to the medications, the IV lines, the early signs of any infection or any sort of raise in the WBC or the fever or any other signs and symptom which shows an infection. Then once you find that these are the signs which are being noted, you have to immediately flag the same to the responding consultant or senior RMO or the floor intensivist, that these are the changes we are noting in the patient, so that the prompt needful care can be done for the patient. Now, with this, we have to understand what are the medication clarity we need when we do our नर्सिंग प्रैक्टिसेस. हम कुछ भी कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हम हमारी एक चेकलिस्ट होती है हर चीज में. तो सिमिलरली मेडिकेशन की क्लैरिटी के लिए भी हम अपने लिए एक चेकलिस्ट बना सकते हैं ना. मेनी पीपल थिंक कि मेडिकेशन रियली इज हमको सिर्फ देने एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. The nurses are supposed to give only, are responsible for only administration. But if you only think, if you are not aware what you are giving, what is the action of it, then you might cause harm more than causing a cure to the patient. That is why we have to be very clear ki what is medication. So we have to really verify on why this antibiotic has been given to the patient. You have to cross check whether the patient really have any resistance or any allergy to this patient. You have to revive what are the dates of the antibiotics. Many hospitals are now practicing a good practice of putting in the checklist. This is the third day out of the seventh day of the antibiotics. So you have to always review the antibiotics. Then after the course of the medications, many a times as with the start of the IV medications, हम लोग एक बार IV medication start कर देते हैं तो उसका 5 course के days के बाद it cannot be stopped immediately. तो उसका जो route रहता है वो switch किया जाता है. Many antibiotics are switched from IV to tablets, and then it has been sustained to the lower side, and उसके बाद वो stop किया जाता है. तो you have to bring it to the notice to the team कि ये patient को हमको switch करने की जरूरत है. अब ये सारा monitoring कैसे करेगी नर्स? तो आपको पहले उसका थेरापेटिक एजेंट्स का जो भी है उसको आपको मॉनिटर करना है एवरी डे वेन एवर. फॉर एग्जाम्पल एनी मेडिकेशंस लाइक अगर हाई अलर्ट इन्फेक्शन का पेशेंट होगा तो उसको हम वैनकोमाइसिन जेंटामाइसिन देते हैं. तो उसके जो लैब रिपोर्ट्स एवरी डे, द पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स एवरी डे भेजे जाते हैं. तो उसका जो भी सीरम लेवल रहता है, उसका टॉक्सिसिटी का रिपोर्ट आता है, उसका कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आता है. तो ये सारे लैब रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर्स को बताने हैं. ये जो भी आप इंटरेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत हाईली इन्फेक्टेड पेशेंट होगा तो उसको काफी सारे दूसरे ड्रग्स भी चालू रहते हैं. तो कोई ड्रग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करता है. नाउ ये कॉन्फ्लिक्ट करने का यू विल से कि अगर डॉक्टर ही मेडिकेशन दे रहा है तो व्हाई वी हैव टू टेक एन इनिशिएशन कि नर्स ही ने ही बताना चाहिए. Many a times in big hospitals or in big settings, or if there are multiple doctors who are treating the patient at once, तो उस हालत में कभी कभी स्किप हो जाता है कि उस डॉक्टर ने अलग मेडिसिन लिखा है, इस डॉक्टर ने अलग मेडिसिन लिखा है, और उसका सेम टाइम पे अगर उसका इन्फ्यूजन चालू है तो दिस ड्रग कैन कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर. So that is why nurse is the one source of person who can clearly ब्रिंग द अवेयरनेस कि कोई ये एंटीबायोटिक चालू है, इसके साथ वारफेरिन चालू है, या कोई ऐसा फूड है जो मेडिकेशंस के साथ उसका अब्जॉर्प्शन कम करता है. तो दैट ऑल थिंग्स हैज टू बी नोटेड डाउन एंड इन्फॉर्म टू द टीम. ओके,
Any doubts on this till now? Now we हेलो, will go through. Yes, yes. गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक डाउट था आपसे कि हाँ बोलिए। इन्फेक्शन जो चेक होता है तो टीएलसी काउंट होते हैं, इसी से चेक होता है या फिर कुछ और भी वो है कि इन्फेक्शन चेक करने का टोटल ल्यूकोसाइट इन्फेक्शन काउंट के में लिए मेजरली यू हैव टू सी फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स। देखो, हर असेसमेंट हमारा, अगर नर्सिंग के साइड से आप बोलोगे तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं जिससे हम पेशेंट का इन्फेक्शन देख सकते हैं। वन इज द साइंस एंड सिम्टम्स एंड अदर इज द लैब रिपोर्ट्स। आप हमारा जो मेजर 100% श्योर जो फाइंडिंग्स रहता है वो हमको लैब रिपोर्ट से ही मिलते हैं। एंड इन लैब रिपोर्ट्स मेजरली कल्चर एंड सेंसिटिव प्लेस अ वेरी बिग रोल। अगर कोई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रहता है तो वो हम विजुअली देख सकते हैं कि वुंड हील हो रहा है, उसके साइड लाइनिंग्स हेल्दी हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज विजुअल फाइंडिंग्स। या कोई समझो जैसे पस है किसी पेशेंट का, ऊजिंग है तो वो कम हो रही है, तो दिस ऑल आर विजुअल्स। एंड इन लैब रिपोर्ट यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, यू विल फाइंड द difference in the culture sensitivity, ki how the count of the bacteria has been decreased, the load of the bacteria has been decreased, like that. मैम कल्चर इसमें में इसमें ब्लड है मैम, ब्लड कल्चर हाँ या फिर कुछ वो डेंगू NS1 ये सब आता है मैम। हाँ, तो यही सब आता हेलो, है ब्लड कल्चर में। ब्लड कल्चर हो गया या फिर डेंगू NS1 सीरोलॉजी वगैरह ये सब टेस्ट भिजवा दिए हमने हाँ और टीएलसी करा लिया, तो वो इन्फेक्शन के अंदर में आएगा मैम। हाँ, इन्फेक्शन के अंडर ही आता है वो। ठीक है मैम। और फिर एंटीबायोटिक चलती है मोनोसेफ वगैरह या फिर इवासेफ वगैरह ये सब चीजें उसको प्रिवेंट करने के लिए, या मेक्सिसिलिन प्रिवेंट चल गई, एंटीबायोटिक चलाते नहीं। हैं डॉक्टर्स वगैरह करते हैं तो इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। हाँ। एंटीबायोटिक जो वगैरह चल, मोनोसेफ हो गया या फिर अमिकासिन हो गई, ये सब चीजें हम्म। इन्फेक्शन को ट्रीट ना होने दे, प्रिवेंट करने के लिए, हाँ, है ना। आप अपने ही सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। नहीं मैम यस। देखो, तो जैसे कि हमने मॉन्ट्रेल एलसी लेते हैं, जैसे खांसी जुकाम होता है तो हाँ, उसको लेने के बाद एक हमने एक दिन ली, 2 दिन ली, उसके बाद में छोड़ देते हैं, तो वो सही रहता है या फिर कंटिन्यूस की डोज वही लेनी तो चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के सेकेंड थर्ड स्लाइड पे आपको यही एग्जांपल दिया ना, कि वी डू नॉट कंप्लीट द कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो कोर्स ओके ऑफ मैम। एक्शन नहीं कंप्लीट करने की वजह से ही पेशेंट मेडिसिन का ये आता है, रेजिस्टेंस आता है। ओके मैम। ओके। तो जो मेडिसिन आपको 5 दिन लेनी है वो आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक लग रहे हो, हम पेशेंट पेशेंट फॉर एग्जांपल, यूजुअली ये इन पेशेंट के सेटअप में प्रॉब्लम नहीं आता है, ये बहुत बार ना सिर्फ ओपीडी के सेटअप में प्रॉब्लम आता है, जहां पर पेशेंट का सर्दी बुखार हो गया, ये हो गया करके वो डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर उसको प्रॉपर चेकअप करने के बाद उसको एंटीबायोटिक देता है कि आपको ये 5 दिन दवाई खानी है, तो एजुकेटेड पीपल मेजरली लेते हैं, बट जो नॉन एजुकेटेड या ले पर्सन रहते हैं वो सोचते हैं 2 दिन लेने के बाद उनका बुखार कम हो गया एंड दे फील हेल्दी, तो वो क्या कर देते हैं, फिर बाकी के 3 दिन का मेडिसिन नहीं लेते, सोचते जाने दो ना, क्या है, मेरे को ठीक लग रहा है। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो बॉडी को, वो 2 दिन ही मेडिसिन लिया है कि बाकी के 3 दिन का मेडिसिन रह गया, तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है नेक्स्ट टाइम जब वो बीमार पड़ता है, और वही उसको एंटीबायोटिक हम शुरू करते हैं तो वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इसीलिए अगर कोई भी मेडिसिन होता है तो उसको डोज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसका पीरियड कंप्लीट करना बहुत जरूरी ओके मैम। है। ओके। अब करके करूंगी। कोई, एनीवन, मिस्टर शेख, आई थिंक समवन, कोई और था, हाँ, शेख मुस्ताक शेख। आपका कुछ डाउट है? मैम ये जैसो ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर का रिपोर्ट के बारे में एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या एग्जाम्पल? यानी कौन सा ड्रग किससे सेंसिटिव है बोल के उसको ना थोड़ा पता नहीं चल रहा, ऑलरेडी हम लोग बहुत व्यस्त थे। और जैसे पेप्टास कितने दिन यूज कर सकते हैं, मोनोसेफ कितने दिन यूज कर सकते हैं, पेशेंट सेप्सिस में रहा तो आईसीयू में कंटिन्यू 10 डेज 15 डेज
ऐसा रहता ना मैम, तो उसे पेप्टाइड चलते ही रहता 4.5 ముందే చెప్పాను जब से కదా नेक्स्ट। మీటింగ్ జరుగుతుంది అన్నాను ఏమంటున్నావు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ది ఫోన్ తీసి ఎత్తివి లిఫ్ట్ చేసి లిఫ్ట్ చేసావు లిఫ్ట్ చేయలే ఆహా లిఫ్ట్ చేసి వాయిస్ వినిపించట్లేదని హలో అని కట్ చేసి ఇది ఇది అవుతుందండి డిస్టర్బెన్స్ ఏమైంది ఎంబీఏది ఎంబీఏది Can you have జాయిన్ the అవుతాను mic in mute? అవుతున్నావులే ఏమైంది ఇక్కడ మన దగ్గర ఇక్కడ అంట 140 అంట 1,40,000 2 years కి దాసి కలిపి గారు మీరు అప్పుడైతే పర్ మైక్ ఇయర్ సాల్వ్ చేయండి, మైక్ మైక్. సారీ Okay. So, what your question is really valid, but I would say suggest that he in this just one minute. Is my screen visible? Are you able to see the antibiotics? Are you able to see the antibiotics? हाँ दिख रहा है मैम। फुल स्क्रीन दिख रही है? फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, बस खाली थोड़ा ही दिख रहा है वो। तो मैम मैं ये बोल रहा था, वो मुझे ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करते क्या प्लीज Wait. सब। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको जो जस्ट वन मिनट। और ये सो मैग्नीज फूड कितने दिन यूज कर सकते हैं मैम कंटिन्यू, और ये सो पेप्टाइड्स और कितने दिन यूज कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन कितने दिन यूज कर सकते हैं, और ये सो पॉलीमिक्सिन कितने दिन यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़े ये ड्रग्स जो रहते कंटिन्यू आईसीयू में पेशेंट्स को देते रहते हैं मेडिकल आईसीयू में। ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ओके सो हम लोग वाइंड अप करने के लिए क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ जो मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर रहता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज आवर जूम मीटिंग का थोड़ा टाइम रेस्ट्रिक्शन है। तो यू ऑल नो कि हर हॉस्पिटल में एक मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर रहता है जो ये सारा एंटीमाइक्रोबियल प्रोग्राम हैंडल करता है, उसको एमएसओ बोलते हैं। उसका मेन रोल रहता है कि वो मेडिकेशन एरर्स को कम करे, ये मेडिकेशन एरर नहीं होने चाहिए, सारे राइट्स ऑफ मेडिकेशन फॉलो होने चाहिए, पेशेंट का सेफ्टी कल्चर फॉलो होना चाहिए, जिसमें पेशेंट को जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको बताया जाता है कि हमने कौन सा मेडिकेशन स्टार्ट किया है और वो कितने। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो मिस्टर शेख का जो डाउट है, एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके सो Are you hearing? बट Hello, एम आई ma'am. ऑडिबल? जस्ट वन मिनट। आपको मेरा आवाज आ रहा है? Hello, ma'am. Hello. हेलो, मेरा Ma'am, आवाज please. आ रहा है? Can मेरा you आवाज explain आ in रहा है? I can't understand और Hindi. यू वांट मी टॉक इन इंग्लिश? Yes, ma'am. I don't know ओके Hindi. Oh, okay, ओके, ma'am. नो Thank प्रॉब्लम, Yes, that ma'am. will be more good for me. Okay.
So what I was saying, the doubt of Mr. Sheikh, he will understand his answer at the end of this session, because that is what we are going to talk further. Okay. So here we were talking about AMS program which has been run in every hospital. So there we have MSO, that is the medical safety officer. His role is to see the policy is placed in a system where the medication, high alert medication, LASA, everything is being placed as per the NABH protocol. Medication error preparation are being done so that the double check policy is being followed out, barcoding is being done, ये सारा important भी है. We are talking about the clarity of the antibiotics and medication. So everything to give a right medical. We were talking about the medication safety checklist. So in that base is that first you have to follow all the policies which are expected in the medication standard for by NABH and JCM. तो यहाँ पे whatever medications we are using, we have to understand the rights of medication administration, the storage policy, double check policy, ये सारा आप देखोगे, dispensing check करोगे, administration का जो practices है वो चेक हो रही है. और जो ये हमने कहा था कि हम डॉक्टर्स के साथ वेरीफाई करेंगे, दैट इज कमिंग अंडर रैशनल ड्रग यूज, वेयर द नर्सेस कैन री-वेरीफाई विद द कंसल्टेंट्स. इस इन सारी चीजों के दौरान अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, एनी मेडिकेशन एरर हैपेंस, देन ये एमएसओ जो रहते हैं, मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर, ही डज द आरसीए फॉर दैट, एंड उस हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं. नीड ऑफ रेगुलराइजेशन इज डन. तो इसमें अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग का इम्पैक्ट ये आता है कि हमको हमारे जस्ट वन मिनट, वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेफ्टी ऑफ medications. Just I'll share my screen. I think I forgot to share my screen. हेलो. I am sharing my screen. Just 1 minute. हेलो मैम. Yes. मैम ALS थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे आप प्लीज? एडवांस लाइफ सपोर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? Advanced life support is not part of medication. Advanced part, advanced life support is different topic. Today we are talking about antibiotics and medication clarity to the nurses. ओके मैम. Okay, so these are the few antibiotics. Where the antibiotics different are the amoxicillin, cefacillin, azithromycin, ciprofloxacin, toxicillin. So you people, if you want, you can take a screenshot of this. Are you able to see? From this, you can understand what are the medications which are being used for the same. This is amoxicillin, which we usually call it as augmentin. This is cefixime. We are short of time, so I am just running the screen. If you want, you can take a screenshot, or maybe surely the student coordinator can provide this for support. Yes, I hope student coordinator will help with this. Gentamicin, amoxicillin. So what is our role in future? Majorly, what is being expected from the nurse? The nurse should follow the 10 rights of medication administration. That is the right patient, right drug, right dose, right route, right time, right documentation, and the right reason for the medication, right response of the medication, right education, and right to refuse.
So to summarize out, your role in future is that you have to see that कि एंटीबायोटिक एक हमारा रिसोर्स है एक तरह से, जैसे प्रेजेंटली वी आर हाउ वी आर सेविंग petrol, diesel, even tigers in India. Similarly, antibiotics are also very valuable resources, so that we have to use it with a very alert way. We have to preserve their efficiency and we have to advocate for them. अभी आप many a times many of you people will ask that how nurses can advocate for it. We can advocate because we are the person who are along with the patient for a longer time. We are the persons who are able to see the signs and symptoms of it. So that is why we can raise our voices towards the safer and smarter antibiotic use. Okay. Now I think we can take the question and answers. Please, Mr. Sheikh. Mr. Sheikh. हेलो मिस्टर शेख। मैम यस, तो आपका क्वेश्चन क्या ये है कि आप ब्लड जो ब्लड सेंसिटिविटी रिपोर्ट देख के आप कौन सा मेडिकेशन देना ये आप डिसाइड करना चाहते हो, राइट? हाँ मैम हाँ, तो वो पहली बात तो ये है, पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक देना है ये राइट कभी भी नर्सेस को नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं कभी भी देना नहीं नर्सेस को चाहते, नहीं मिलेगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल तो कौन सा ड्रग सेंसिटिव है इसको, आप लोगों को नॉलेज कैसा होता है तो हाँ वो ये ड्रग जो से आपने अगर अगर कोई ब्लड सेंसिटिविटी रिपोर्ट आप देखोगे तो उसमें एक साइड में मेडिकेशंस लिखे हुए रहते हैं, जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं, और उसके सामने एस लिखा हुआ रहता है या रेजिज आर लिखा हुआ रहता है। आपने देखा है रिपोर्ट? हाँ 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 तो हाँ, तो रेसिस्टेंस जो रहता है, एस, सेंसिटिव हाँ रहता है। हाँ हाँ, तो जो सेंसिटिव रहता है वो हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं, और जो आर लिखा हुआ रहता है वो हम नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर हमने चालू भी किया तो भी वो पेशेंट के किसी काम नहीं आएगा, पेशेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हमको ब्लड कल्चर रिपोर्ट्स देखने की जरूरत रहती है कि जहाँ पे हमको पता चलता है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक हमारे लिए सेफ मैडम ये जैसे यूरिन है। कल्चर में कैसा पता चले? क्या? कल यूरिन कल्चर। तो उसी के साथ सेंसिटिविटी आएगा ना। हाँ। और उसी के ये जैसे साथ मैग्नेस फूड, और ये जैसे मैग्नेस फूड कितने दिन यूज कर सकते हैं मैम कंटिन्यू? See, it all depends on the level of infection the patient is having. इसीलिए मैंने कहा ना कि as per the doctor's order, nurses have to see that the course has been done. If the doctor is advising that it has to be given for such a course of the time, then that has to be given कि उतने दिन वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। It is ओके not मैडम। nurses who will decide. I say we have as a nurses, it is the role of the nurse that she sees that कि उसका ट्रीटमेंट उतने दिन जाना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है या हाई सीवियर इन्फेक्शन है। जैसे अभी बोल रहे हो, एक्चुअली द नर्सेस आर नॉट द नर्सेस कैन एडवोकेट, नर्सेस आर नॉट डिसीजन मेकर। वो पेशेंट को मैग्नेक्सपोर्ट आपको 1.5 ग्राम देना है या 3 ग्राम देना है, उसका रेशियो 2 टाइम्स ए डे रहना चाहिए या 3 टाइम्स ए डे रहना चाहिए, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। इट इज नॉट द नर्स। इट कैन द डॉक्टर कैन टेल यू टीआईडी और इट कैन से बीडी ट्वाइस अ डे, 12 आवर्स का ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है तो 3 टाइम दे सकते हैं। अभी आप जो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि वो कितने दिन तक देना है, तो वो कभी 5 दिन भी हो सकता है, कभी 7 दिन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मैम इसके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीएन इसके अंदर? रोल ऑफ आईसीएन हाँ इन्फेक्शन मैंने कंट्रोल के रोल ऑफ। हाँ, तो मैंने वही तो आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि रोल ऑफ आईसीएन का डायरेक्ट रोल नहीं आता है। आईसीएन का रोल इज टू हेल्प द सेफ्टी मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट को मेडिकेशन चालू है, कौन से पेशेंट्स को एंटीबायोटिक चालू है। तो वो सारा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगी कि ये पेशेंट को ये एंटीबायोटिक चालू है, उसको ये इस लैब कल्चर के बेसिस पे उसको स्टार्ट किया है, उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी ये था।
तो ये सारा सिर्फ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके वो आईसीयू को देगी। ऑन दैट रिपोर्ट बेसिस देन दे विल वर्क ऑन द एएमआर। ओके। इन्फेक्शन कंट्रोल हाँ। नर्स का सिर्फ काम डेटा कलेक्शन का है इसमें। ओके मैम। ओके, एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? मैम एक डाउट था मेरा, हाँ जी, जो बोलिए। महंगी एंटीबायोटिक होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है या फिर जो सस्ती होती है ये इफेक्ट करती है? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक होती है, उसका कॉस्ट से कोई लेना मैम देना उसमें नहीं रहता है। प्राइस वगैरह से कुछ वो इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ। प्राइस वगैरह से कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कोई महंगे नो नो, एंटीबायोटिक? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए तो हम कंपनी बेस्ड एंटीबायोटिक, कोई भी डॉक्टर कंपनी बेस्ड एंटीबायोटिक नहीं लिखता। कंपनी बेस्ड एंटीबायोटिक कोई भी डॉक्टर नहीं लिखता। बहुत सारे वो डॉक्टर आपको महंगे महंगे। जेनेरिक जेनेरिक नाम लिख के देता है। तो आपके आपके फार्मेसी में, आपके हॉस्पिटल के जो फॉर्मूलरी है उसमें उस एंटीबायोटिक का कौन से कंपनी से आता है वो फिर वो अलॉट करके देते हैं। उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके मैम। एनी अदर डाउट? हेलो। हेलो, यस। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट्स के हम क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं अपनी साइड से? इन्फेक्शन आईसीएम के। प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, इन्फेक्शन प्रिवेंट के लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? जैसे एक तो बट एटमॉस्फेयर क्लीन होना चाहिए, अच्छा, एज अ मेडिकेशन सेफ्टी के हिसाब से, पेशेंट भी तो आसपास उसके में लिए अगर। आपको आपके जो मैं व्हाट आई मेंशनड इन योर रोल फ्रॉम योर सेफ्टी साइड, यू हैव टू फॉलो ऑल द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। यू हैव टू फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल पॉलिसी। आप प्रिपेयर करते वक्त उसको प्रॉपर से क्लीन करोगे, उसको विथ अल्कोहल स्वैब से आप वाइल को क्लीन करोगे। आप मेडिकेशन सेफ्टी के लिए आप सिंगल डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करोगे। यू विल प्रिपेयर द मेडिकेशन इन अ वेरी सेफर साइड एरिया जहाँ पे स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। आपका हैंड हाइजीन फॉलो करना है आपको। सो इफ यू देन यू कैनॉट रीयूज एनी नीडल्स एंड syringes. You have to maintain the medication record, that the medication has been given as a right patient, right drug to the right, in a right dose, in a right route, etc. आपका जो इंजेक्शन साइट, अगर आप आईवी दे रहे हो तो आपका जो आईवी लाइन का हब है, दैट यू हैव टू क्लीन विथ 70% अल्कोहल स्वैब्स. In many hospitals they have started. Then you have to avoid touching the sterile, giving. हेलो Yes, anything else? मैम, जैसे कि पेशेंट को एंटीबायोटिक से एलर्जी हो जाती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक ऐसी होती है जिससे एलर्जी, फिर एविल लगाते हैं, कोई और एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और रेडनेस हाँ हो रही है बॉडी, तो उसमें क्या करेंगे हाँ। उस कंडीशन? एंटीबायोटिक की अगर एलर्जी होती है तो आपको कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है, देन ही विल डिसाइड अबाउट द चेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पहले तो उसको आपको टेस्ट वो डोज देते हैं। एंटीबायोटिक इमीडिएट, अगर पेशेंट को, सी दैट इज कॉमन, it is not only with antibiotic, it is common with any medication or any drug product or any IV product you are giving to the patient. If there is any form of allergy, if you are noticing, you have to immediately stop the medication, inform the doctor about it and the documentation of the same, और जो corrective action बताते हैं वो आपको करना है। और कोई ओके डाउट है? मैम। Hello, ma'am. Hello. Yes, yes. Explain it in English. Overall summary.
Hindi, I don't know. The question has been asked and the explanation has been correct. It all depends on which language they are asking, so I have to respond accordingly. I am saying, okay, you can jot down the this points for safe injection practices. You have to perform hand hygiene at every point of procedure. You have to use sterile needle and syringe for every injection. You cannot reuse any needle, syringe, or any single dose vials. You have to follow all the rights of medication administration as guided by WHO. Then you have to clean the injection site or the vial which you are preparing with 70% alcohol swab. You have to keep a sterile area where you are preparing the medication. You should not touch the sterile part of the aseptic technique while you are preparing and you are administering to the patient. Okay. And after that, overall everything, you have to just discard everything in a panchaproof container. This was what I was telling him in Hindi. In this ICN role, what it is, ma'am? Sorry? Antibiotic clarity. Infection controls role. Infection control, yes. Infection control. In this all topic, were points to. Sorry? No. In this topic, infection control nurses, what are the role we have to follow? That is only I am telling them, dear. Infection control nurse is not having any direct role here. She is only collecting the data from the patients about their cultures and the antibiotics which is going. The data is been provided to the medication safety officer or the infection control consultant. Then they decide about antibiotic resistance policy. Infection control nurse have to see only the safe medication practices have been followed properly and the right medications. Means, for example, if the hospital has told that these are the only medication which the doctors are to be used, so she will be only surveillancing that whether any other antibiotics has been started. And if it has been started, then the culture sensitivity report and the patient data is been collected and given to the MSO. That is the only role of infection control. Okay? Okay. हेलो मैम। Okay. Yes. मैम सिंगल डोज वाइल पॉलिसी बता दोगे एक बार इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे? Sorry. तो सिंगल डोज वाइल के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे? Single जैसे कि dose हेपरिन vial means that vial you have to use only once. You cannot reuse. That is what the point I told you. You have to follow single syringe, single needle, and single vial. If it is single vial, you have to use it only once and discard it. ओके मैम ये ओपन वाइल पॉलिसी क्या है कि मैम से कितने दिन ये करना रहता है? क्या ओपन वाइल पॉलिसी, which policy? I'm not getting the correct word. हेलो मैम, जैसे ओपन वाइल हेपरिन होता पॉलिसी, है, इंजेक्शन हेपरिन यूज करते हैं हम पेशेंटों पे, जैसे डायलिसिस के पेशेंटों पे 1 ml हेपरिन यूज करके उसके बाद उसकी कैपिंग करते हैं, कवर करते हैं उसकी आप लोग डेटेड ओपन डेट। मल्टी डोज वाइल का बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, मल्टी डोज वाइल की पॉलिसी बता दो। हाँ, तो जो आप कह रहे हो ना कि एक वाइल में से हमने 1 ml, जैसे पोलियो डोज का रहता है कि ये आप IM जो दिया जाता है कि उसमें से हम 1 ml निकालते हैं और वापस रखते हैं, फिर दूसरे पेशेंट को फिर दूसरा लेते हैं वापस रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी डोज, राइट? हाँ जी मैम। हाँ, सो मल्टी डोज वाइल पॉलिसी में ये रहता है कि दैट डोज व्हेनेवर यू are using medication from it, you have to scrub the hub for 15 seconds with 70% of alcohol, and every time you are
you have to check the expiry date of that vial time to time, and it has to be stored in a proper area. अगर उसका storage, it has been told that it has to be kept at a certain temperature, that temperature has to be maintained. And even if the vial is not empty, but the date has expired, then you have to discard it. मैम मल्टी डोज वाइल में कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं? जैसे हेपरिन हो गया या फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे ओपन हो गई तो उस पर लेबलिंग करके। Son, what I am saying, there is no fixed temperature. The temperature is written on the vial or the medication. Every medication has different temperature storage. You have to read the medication pamphlet with that medication. Every medicine has its own different storage temperature. उसकी वाइल पे लिखा रहता है ना मैम ऐसे टेम्परेचर कितना रहता है ना? Yes. Every medication has it written कि what temperature it has to be kept. कभी 3 to 4 डिग्री रहता है, कभी below 25 डिग्री रहता है, कभी maintain at 20 डिग्री रहता है. You have to read on the vial. That is why you have to follow the rights of medication. ठीक है मैम, जिसमें ईपीओ इंजेक्शन होते हैं तो फ्रिज में टेम्परेचर में रखते हैं, नहीं तो बाहर रखेंगे तो खराब हो जाता है। Yes, of course. खराब होता है. इरिथ्रोपोइटिन के नाम से आता है मैम। हाँ रूम फ्रिज टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव होगी, अच्छा रहता है। हाँ, अगर फ्रिज टेम्परेचर बोला है तो आपको फ्रिज में ही रखना है. टेटनस का हो गया या फिर एक दो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हो गया, वो फ्रिज में ही अच्छा रहेगा। अगर वो सारे, बाहर रखेंगे। हाँ, जो टेम्परेचर बोला है आपको वो ही मेंटेन करना. ओके मैम। आई थिंक मिस्टर चिराग. यस मैम। Yes, is it done? Any more questions? नहीं मैम। Mr. Chirag? जी मैम। Yes. हेलो। Student coordinator. Student coordinator. Yes, बोल दो बोल. Yes. Yes. Miss Shobna. No. Uh, Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, my name is Komal Kant. First of all, to thank you for your valuable time and this wonderful session with us. Thank you so much. It was really a good session, but I understand that antibiotic itself is not a very large topic for the nurses. But as I mentioned out all students, I would Mhm. really say that you people have to follow the rights of medication and infection control policy. That is the only important base for your safe medication practices. Okay. Thank you for the session, ma'am. I'd really like to thank you for all the participants. Hope ये जो सेशन रहा काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड साथ में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगी, एस्ट्रॉन ने रिसेंटली कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइक नीकू हो गया, एमएसओ मेडिकेशन सेफ्टी ऑफिसर, जिसकी अभी मार्केट में काफी डिमांड चल रही है। साथ में लैक्टेशन नर्स एंड आपका डायबिट्स एजुकेटर भी हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग कि ये आपके जो कोर्सेज हमारे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं इसी की तरह रहेंगे। 3 मंथ का कंप्लीटली ऑनलाइन ही रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को भी कोई क्वेरी है। साथ में आप अपने काउंसलर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू कोर्सेज। ओके। मैम मेरा एक डाउट था छोटा सा। हाँ जी, बताइए। बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती क्या इसमें? जैसे कि ऑनलाइन तो क्लास हो जाती है, जब तक अगर कि बुक्स वगैरह में इजी फॉर्मेट लिखा हो या फिर कोई पीडीएफ मिल जाए। बिल्कुल, आप जब पोर्टल पे लॉग इन करते हो ना, जब कोर्सेज में इनरोल होते हो तो स्टडी मटेरियल का सेक्शन आता है। इस स्टडी मटेरियल के वो सेक्शन में बुक्स होते हैं, वहां पे 8 to 10 पेजेस के बुक्स होंगे जिसको आपको रीड आउट करना होता है। ओके। जैसे द मोबाइल या बुक कुछ मिलती हो जो इजी वे में सिखाने के लिए पर्पस के लिए पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पोर्टल पे ही आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको बुक्स मिलती है वहां पे। ठीक है, आपने पैसे नहीं पोर्टल मिलती? अच्छे से स्क्रॉल किया है, आपने पोर्टल को अच्छे से गो थ्रू किया है। हाँ मैम देखा तो था, लेकिन ना ये बुक्स वगैरह होती है ना तो उसमें थोड़ा सा इजी वे में हो जाता है।
मैं वही कह रही हूँ आपसे, बुक्स होती है उसमें 9 to 10 पेजेस के बुक्स आपके एवरी टर्म में होते हैं, एंड वो बुक्स आपको रीड भी करने होते हैं। उस बुक्स को रीड ये करने बुक के बाद ही आप उसके बाद लाइक सेल्फ असेसमेंट एंड असाइनमेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हो। अलग से बुक्स नहीं मिलती? नहीं, एक्स्ट्रा कोई बुक्स नहीं होंगी। द थिंग कि आप ये कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पीडीएफ बनवा सकते हो। ओके। ओके। एनी अदर डाउट? हेलो एवरीवन। जैसे मैम नेक्स्ट क्लास कब होएगी, कुछ आइडिया? जैसे कि अभी तो एक हफ्ते बाद क्लास हुई थी, हर ये दिन आपका क्लास हो। मंथ में एक वेबिनार होता है, तो ये आपका जुलाई का वेबिनार है। नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त का वेबिनार होगा, जिसके लिए आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। एक महीने में मैम? एक महीने में एक वेबिनार होते हैं। एवरी वीक आपका डाउट सेशन होता है, जो कि नेक्स्ट वीक में भी आपका सैटरडे को ही हो सकता है। ओके। सैटरडे? जी, सैटरडे को होगा, 4 to 5 PM मोस्टली हो सकता है। इसके लिए आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हेलो मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैम, please kindly conduct the next webinar in English. I couldn't understand in the Hindi. I couldn't follow that. Please. Your voice is breaking. Could you please repeat it? Hello. Hello. Yeah, I your don't know voice. Hindi, ma'am. Sir, I want in English Yes, session. I'm asking, your voice is breaking. Please repeat it. Ma'am, What I did want you, in English. what? Yes, yes. Are you hearing, ma'am? Yes, I'm hearing you. Ma'am, I want in English session. I don't know the Hindi. I couldn't follow that. Please Okay. kindly. Okay, Yeah. okay. So you are telling about the webinar session language, right? Yeah, language I want in English, ma'am. Okay, no issues. Next time we'll just make it sure that the webinar should be in English. Okay? Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay. Any other doubt? Okay. Thank you so much, everyone. Hope this session is informative. अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है, आप अपने अपने काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।